Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to bacteriology and virology class. Today our topic is what are actinomycetes? Actinomycetes क्या है? Actinomycetes are actually bacteria. These are bacteria which morphologically resembles with fungi. You see in this image that this looks like hyphae of the fungi or mycelium of the fungi, but these are actually prokaryotes bacteria which resembles with fungi hyphae. So their body consists of hyphae, or their cells are elongated in the form of hyphae, and they form mycelium on the substratum. These are different images of actinomycetes. These are different images of actinomycetes. These actinomycetes are also known as streptomycetes. Yeah, the streptomycetes also belong to this class actinomycetes. So these are few images of actinomycetes. These are prokaryotes, these are bacteria, these are not eukaryotes, these are not fungi, but only they resembles morphologically with fungi, so they are known as actinomycetes. Uh, the study of fungi is known as mycology. Mycetes, term mycetes is usually used for fungi. So here mycetes is used for these bacteria due to their resemblance with fungi. So actinomycetes, the word actinomycetes is derived from Greek word actinus, which means ray, and mycetes means fungi. तो इनिशियली दे वर थॉट टू बी फंजाई, पहले ख्याल किया जाता था कि एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई है, बट नाउ इट इज दीज आर नोन टू बी प्रोकैरियोट्स, लेकिन आजकल पता चला है कि ये प्रोकैरियोट्स है और बैक्टीरिया है. Actinomycetes are also known as actinobacteria. This is a class. These bacteria are gram-positive bacteria. Their cell wall composition vary greatly. तो एक्टिनोमाइसिटीज के जो अदर मेंबर्स हैं या अदर आर्डर्स हैं, उनका जो सेल वॉल है वो भी आपस में थोड़ा मुख्तलिफ है. These bacteria are non-motile bacteria, while few bacteria show their spores which have flagella and they show motility. These bacteria, actinomycetes bacteria, are aerobic bacteria. They use oxygen. They are aerobic bacteria. Morphologically, these bacteria resembles with fungi. Filamentous shaped, they have filamentous shaped forming hyphae having septa, a septate, which usually divide the hyphae into long cells, 20 micrometer long cells. तो ये बैक्टीरिया जो है इनके जिस्म हाइफी पे मुश्तमिल होता है और हाइफी मिलके माइसीलियम बनाते हैं. उसी तरह जिस तरह एक्चुअल फंजाई में हाइफी और माइसीलियम का जिक्र है, चूँकि वो यूकेरियोट्स हैं, but these actinomycetes produce hyphae and mycelium, but these are prokaryotes. When growing on solid substratum, soil or agar, filamentous actinomycetes develop a branching network of hyphae and then mycelium. जब ये किसी सबस्ट्रेटम पे किसी चीज़ पे ग्रो कर लेते हैं, ख्वा वो सबस्ट्रेटम कोई चीज़ साइल हो या कोई एगर मीडियम हो, दे प्रोड्यूस हाइफी, वो इलांगेटेड सेल्स बना लेते हैं, उनको हाइफी कहते हैं, और इसके बाद वो माइसीलियम बना लेते हैं. अच्छा, इसी माइसीलियम पे बाद में स्पोर्स पैदा होते हैं और वो स्पोर फिर रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं. और जब व्हेन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, few members of these actinomycetes produce valuable antibiotics. Aerial hyphae septate to form chains of spores and exospores released into the environment. ये hyphae फिर स्पोर बनाते हैं और फिर स्पोर जो है
वो एक्सोस्पोर होते हैं, इट मीन्स कि इनके दे आर नॉट कवर्ड प्रॉपरली इनसाइड स्पोरेंजियम, बट दे आर एक्सोस्पोर्स। वो एक्सोस्पोर्स होते हैं, दे कैन बी लिबरेटेड इजीली बाय विंड और एनिमल्स। एक्टिनोस्पोर्स आर नॉट हीट रेजिस्टेंट बट विथस्टैंड डिसिकेशन वेल। एक्टिनोस्पोर्स जो है ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है, हीट का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, विद स्टैंड डिसिकेशन वेल, लेकिन खुश्की का मुकाबला कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर दे कैन बी ग्रो एंड दे आर वायबल। अगर थोड़ा भी पानी कम पानी भी हो, खैर है, फिर भी ये गुजारा कर सकते हैं, खुश्की के हालात को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। स्पोर्स में भी डिस्पर्स्ड बाय विंड और एनिमल्स, एनिमल या विंड के ज़रिए इनकी स्पोर्स की बखेर की जा सकती है। स्पीशीज ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज लिव इन म्यूकोजल सरफेसेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो एक्टिनोमाइसीटीज की जो स्पीशीज हैं, स्पेशली वो ऐसे सरफेस पे म्यूकोजल सरफेसेस यानी लेयर, जिस तरह नातने हैं या गला है या एलिमेंट्री केनाल है या डक्ट है, तो इस तरह के सरफेसेस पे वो ग्रो कर लेते हैं, उधर होते हैं, मौजूद होते हैं। इंसान में भी ये मौजूद होते हैं और अदर वार्म ब्लडेड एनिमल में भी ये मौजूद होते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज का एक मेंबर है एक्टिनोमाइसीटीज इसराइली, ये इसराइली इसका स्पीशी है। एक्टिनोमाइसीटीज इसराइली काज इन्फेक्शंस काज करता है इन एनिमल्स सच एज लम्पी जा इन केटल। तो लम्पी जा जो कि माल मवेशी में एक बीमारी है, जबड़े की बीमारी है, इसको लम्पी जा कहते हैं। इसमें ये बीमारी जानवरों में भी हो सकती है और इंसान में भी हो सकती है। इसमें ये जबड़ा जो है इन्फेक्शन ये काज करता है, ये बैक्टीरिया, और फिर जबड़े की बीमारी हो जाती है। डिजीज काज्ड बाय एक्टिनोमाइसीटीज इज नोन एज एक्टिनोमाइकोसिस। तो एक्टिनोमाइसीटीज जो बीमारी काज करता है अपने होस्ट में, इनको एक्टिनोमाइकोसिस कहते हैं। Here, short type of classification is presented here. A classification of class Actinobacteria. तो क्लास एक्टिनोबैक्टीरिया का शॉर्टकट क्लासिफिकेशन इधर दिया गया है। क्लास एक्टिनोबैक्टीरिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ऑर्डर्स। उनको तकरीबन 9 ऑर्डर में इनको क्लासिफाई किया गया है। ऑर्डर नंबर 1 एक्टिनोमाइसीटेल्स, नंबर 2 माइक्रोकोकेल्स, नंबर 3 कोरिन Corinbacteriales. These include important human pathogens. This third number order contains important human pathogens. इस ऑर्डर में अक्सर एक्टिनोमाइसीटीज के जो ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पैथोजन है, ह्यूमन पैथोजन है, वो इसमें इंक्लूड है। माइक्रो मोनोस्पोरेल्स, नंबर 5 प्रोपियोनिबैक्टीरियल्स, नंबर 6 स्ट्रेप्टोमाइसीटेल्स। तो स्ट्रेप्टोमाइसीटेल्स जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसी आर्डर से स्ट्रेप्टोमाइसीटेल से अहम और इम्पॉर्टेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स भी हासिल की जा सकते हैं। नंबर 7 है स्ट्रेप्टोस्पोरेंजियल्स, नंबर 8 है फ्रेंकियल्स। ये फ्रेंकियल्स नंबर 8 नंबर वाला जो है, दिस हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ 8 प्लांट फैमिलीज। 8 किस्म के प्लांट फैमिली के साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना सकता है। और कौन से फैमिलीज, विच आर नॉन लेग्यूमिनियस फैमिलीज या ट्रीज। तो ऐसे फैमिलीज जो कि नॉन लेग्यूमिनियस है, उनके जो फ्रूट होते हैं वो लेग्यूम में नहीं होता, तो उनके साथ ये फ्रेंकियल्स, मेंबर्स ऑफ फ्रेंकियल्स जो है एक्टिनोमाइसीटीज जो है, एक्चुअली ये मेंबर्स, ये बैक्टीरिया हायर ट्रीज के रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको याद होगा कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो जिस तरह नस्टाक है या एनेबिना है, कि वो
रूट लेग्यूमिनस रूट के साथ वो एसोसिएशन बनाते थे सिम्बायोटिक और नाइट्रोजन को फिक्स करते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रेंकियल्स हैं, इनके मेंबर्स नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। ये पॉइंट करने की बात है। नंबर 9 है Bifidobacteriales. The members of this order pathogenic also found in human genital or urinary tract. तो इनके जो मेंबर्स हैं ये अक्सर ह्यूमन जेनिटल या यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। आल्सो काज बैक्टीरियल वेजाइनिटिस, तो इसमें बैक्टीरियल वेजाइनिटिस, so these bacteria cause serious type of diseases in humans. These bacteria also recorded as human gut microflora. तो ये ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में भी ये पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन माउथ एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स एंड इंसेक्ट्स। तो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट जो है इनके माउथ में और इंटेस्टाइनल एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जाते हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसके साथ साथ वेरियस इंसेक्ट में भी इनका पता चला है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।